میں تو اس کی زوجہ ہوں جس کے وجہ سے ساری امت بخشی جائے گی، میں بھلا کیسے جہنم میں جا سکتی ہوں؟ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارا تعلق کسی نیک انسان سے ہے تو ہماری بخشش پکی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر باپ حاجی ہے، شوہر دیندار ہے تو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے ہم بھی بچ جائیں گے۔ لیکن قرآن آج ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے۔ سوچئے، ایک طرف وہ عورت ہے جو اس ہستی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے جس کے لیے کائنات بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، ہر وقت وحی کا نزول، ہر وقت قرآن کی تلاوت، لیکن قرآن کہتا ہے وہ عورت جہنم کی آگ میں جلے گی۔ اور دوسری طرف وہ عورت ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم، سب سے بڑے کافر فرعون کے محل میں رہتی ہے، جس کا شوہر کہتا ہے میں تم سب کا خدا ہوں، تم سب میری عبادت کرو اور میرا حکم مانو، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس کی زوجہ جنت کی حقدار ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ نبی کی صحبت کام نہ آئی کہ وہ عورت دوزخ کی حقدار بنی، اور کہاں وہ عورت جسے جنت جانے سے فرعون کا ظلم بھی روک نہ سکا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ تحریم کے نازل ہونے کے پس منظر پر بات کریں گے۔ اس سورہ کا اسٹارٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک معمولی واقعہ سے ہوا، لیکن اس کا پوری امت کے لیے قیامت تک کا ایک سبق ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اگلے کچھ منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ بات سن 7 ہجری کی، مدینہ منورہ میں اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا اور ایک مضبوط اسلامی معاشرہ اپنے عروج پر۔ یہ سورت کسی بڑے واقعے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ اس کا تعلق تلواروں اور جنگ سے تھا، بلکہ اس کا تعلق گھر کے اندر کے رازوں اور پردوں کے پیچھے ہونے والے معاملات سے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے دکھایا کہ نبی کا گھر بھی انسانوں کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہاں بھی کبھی کبھی رشک، جلن کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بے پناہ شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی خوشی اور دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چیز خود پر حرام کر لی جو اللہ نے حلال کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کیا یہ صرف شہد کھانے کا معاملہ تھا یا پھر آپ کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ وقت گزارنے کا معاملہ تھا۔ کچھ ازواج کو، جن میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا نام آتا ہے، ان کو تھوڑی سی جلن محسوس ہوئی اور وہاں کچھ ایسا ماحول بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانی پڑی کہ میں اب یہ چیز استعمال نہیں کروں گا۔ دیکھنے میں یہ ایک معمولی واقعہ لگتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ رہا ہے، لیکن عرش والے کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج نبی کسی حلال چیز کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے تو کل پوری امت اسے شریعت سمجھ کر اپنے اوپر حرام کر لیتی اور مشکل میں پھنس جاتی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورۃ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں رک کر سوچئے، اللہ نے اپنے محبوب کو ٹوکا۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ نبی بھی، اپنی طرف سے اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیجئے، اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اکثر ہم دوستوں یا بیوی بچوں کے دباؤ میں آ کر غلط قسمیں کھا لیتے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی قسم ہے، میں سچ بول رہا ہوں، میری بات پر یقین کر لیں۔ بہت سی جائز چیزوں کو خود پر بند کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میں نے کھلا رکھا ہے اسے بند مت کرو، اور جس چیز سے میں روک دوں نہ کرو۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس سورہ میں ایک اور واقعے کا بھی ذکر ہے جو آج کل کے دور میں ہر گھر کی کہانی ہے، راز کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے کوئی بات راز کے طور پر کہی اور ان کو تاکید کی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، لیکن وہ بات ان سے ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ راز دوسری بیوی کو بتا دی۔ اب ذرا غور کریں، کیا یہ کوئی ملکی بغاوت تھی؟ نہیں، نہ ہی یہ کوئی مالی کرپشن تھی، یہ بس ایک گھر کی بات تھی جو باہر نکل گئی۔
लेकिन अल्लाह ताला की इंटेलिजेंस देखिए, अल्लाह ने फौरन वही के जरिए अपने नबी को बता दिया कि आपका राज लीक हो गया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बीवी से पूछा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, ये सब आपको किसने बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ज़ात ने खबर दी है जो सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। आज हमारे घर क्यों टूट रहे हैं, वजह व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉरवर्डेड मैसेजेस और वॉइस नोट्स सबूत के तौर पर एक दूसरे को शेयर होते हैं। हम दोस्त को कहते हैं, देखो मेरे भाई, ये बात तुम्हारे अलावा मैंने किसी से शेयर नहीं की, यार किसी को बताना मत प्लीज। और 5 मिनट बाद वो बात पूरे ग्रुप में डिस्कस हो रही होती है। सूरत तहरीम हमें बताती है कि राज में खयानत करना अल्लाह को कितना सख्त नापसंद है। ये छोटी बात नहीं है, इससे ट्रस्ट यानी एतमाद टूटता है, और जब एतमाद टूटता है तो घर टूट जाता है। अल्लाह ने इन बीवियों की इस गलती पर सख्त वार्निंग दी। फरमाया, ऐ नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि तुम्हारे दिल जरूर कुछ हट गए हैं, तो वो तौबा कबूल करेगा। और अगर नबी के मुकाबले में तुम एक दूसरे की मदद करो तो बेशक अल्लाह खुद उनका मददगार है, और जिब्रील और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते मददगार हैं। इतनी सख्त वार्निंग सिर्फ एक राज खोलने पर? जी हाँ, क्योंकि नबी का घर पूरी उम्मत के लिए मॉडल था। वहाँ सियासत या ग्रुपिंग की इजाजत नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह ने फरमाया, अगर वो नबी तुम्हें तलाक दे दें तो करीब है कि उनका रब उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां बदल दे, जो इताअत वालियां, ईमान वालियां, अदब वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजादार, ब्याही गईं और कवारियां हों। यहाँ अल्लाह ने औरतों की आइडियल क्वालिटीज यानी खुसूसियात बयान की हैं। अगर आज कोई लड़की या औरत पूछती है कि मुझे कैसा होना चाहिए, तो वो सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 पढ़ ले। अल्लाह को फैशन या स्टेटस नहीं चाहिए। अल्लाह उनको पसंद करता है जो इबादत गुजार हो, रोजा रखने वाली हो और अपनी जबान और राज की हिफाजत करने वाली हो। ये आयत नाजिल होने के बाद अज़वाजे मुतहरात पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। फिर इस सूरह का फोकस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हटकर हम सब पर आता है। ये आयत कुरान की सबसे खौफनाक और सबसे डराने वाली आयत। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालो, ये नहीं कहा कि उन्हें डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनाओ, बल्कि कहा नार यानी जहन्नम की आग से बचाओ। हम में से कितने बाप हैं जो रात को उठकर चेक करते हैं कि उनका बेटा मोबाइल पर क्या देख रहा है? कितनी माएँ हैं जो बेटी के कपड़ों और पर्दे पर वैसे ही फिक्रमंद हैं जैसे उसकी शादी की फिक्र करती हैं। अल्लाह कहता है कि इस आग पर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो सख्त गिर और ताकतवर हैं, वो रिश्वत नहीं लेते। वो ये नहीं देखेंगे कि ये किसी चौधरी का बेटा है या किसी मिनिस्टर की बेटी, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। ये आयत ताकीद करके कह रही है कि ये नहीं हो सकता कि आप खुद तहज्जुद गुजार हों और घर में डांस पार्टी चल रही हो। आप ही जिम्मेदार हैं और इसका सवाल आपसे ही होगा। और फिर अपनी बात को समझाने के लिए अल्लाह ने हिस्ट्री से 4 खवातीन को चुना, 2 जहन्नम की तरफ जाने वाली और 2 जन्नत की तरफ। ये मिसालें साबित करती हैं कि रिश्ता नहीं अमल का अमल। हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां, ये दोनों औरतें उन नबियों के निकाह में थी, वो भी सबसे नेक बंदों के। नबी के घर में रहना, नबी के साथ खाना पीना, लेकिन उन्होंने खयानत की। ये खयानत कोई और नहीं थी क्योंकि नबी की बीवी कभी बदकार नहीं होती, ये खयानत नजरिए की थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी लोगों से कहती थी, मेरे शोहर नूह को देखो, दीवाना हो गया है, मौसम खुश्क है और वो कश्ती बना रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मेहमानों की मुखबरी करती थी और बुरे लोगों का साथ देती थी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चलो नबी की बीवी है उसको माफ कर दो। हुक्म आया, दाखिल हो जाओ आग में जाने वालों के साथ। नबी का साथ भी उन्हें बचा ना सका। दूसरी तरफ देखिए हजरत आसिया बिन्त मज़ाहिन अलैहिस्सलाम, फिरौन की बीवी। वो फिरौन जो अपने वक्त का हिटलर था, जो खुद को रब कहलाता था। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने इस लग्जरी लाइफ को लात मार दी। उन्होंने फिरौन के जुल्म सहे। रिवायत में है कि उन्हें सख्त अजियत दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दुआ मांगी जो आज भी कुरान के सीने पर लिखी है, ऐ रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे। गौर कीजिए, उन्होंने जन्नत मांगने से पहले पड़ोस अल्लाह का मांगा, घर बाद में मांगा। ये साबित करता है कि अगर औरत चाहे तो फिरौन जैसे शोहर के होते हुए भी वो वली अल्लाह बन सकती है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इफ़्फ़त की दीवी, जिन्होंने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की। बिना शोहर के अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया। समाज ने कितने ताने दिए होंगे। कहां से आया ये बच्चा? मरियम, कुछ शर्म करो, तुम्हारी शादी नहीं हुई और ये सब। लेकिन वो चुप रही, अल्लाह पर तवक्कुल किया। नतीजा, अल्लाह ने इनके नाम पर पूरी सूरा उतार दी। इन मिसालों का खुलासा ये है, न नूह की बीवी को शोहर की नेकी ने बचाया, न फिरौन की बीवी को शोहर की बुराई ने डबोया।
इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। दोस्तों, सूरत तहरीम हमें डरा कर नहीं छोड़ती बल्कि उम्मीद का दरवाजा भी खोलती है। अल्लाह जानता है हमसे गुनाह होते हैं, इसलिए फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जिस दिन अल्लाह नबी और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए रुस्वा न करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा। वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे। बेशक तू हर चीज पर खूब कादिर है। यह हमारे लिए साफ रास्ता दिखाया कि इंसान गुनाहों से तौबा करे और फिर उस गुनाह की तरफ पलट कर ना देखे। अगर हम ऐसी तौबा कर लें तो अल्लाह वादा करता है कि वो हमारे गुनाह मिटा देगा और हमें जन्नत में दाखिल करेगा। तो आज फैसला आपके हाथ में। क्या आप अपना घर फिरौन वाला बनाना चाहते हैं जहां दीन का मजाक उड़ाया जाए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जैसा जहां अगर गलती हो भी जाए तो फौरन तौबा और इस्लाह की जाती है। अपने घर के राज छुपाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स की इज्जत करें और सबसे बढ़कर अपनी फैमिली को मोबाइल और इंटरनेट की बेहयाई वाली आग से बचाएं। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका नूर भी आपके आगे दौड़े तो आज ही तौबा कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आप ये चाहते हैं कि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखें। शायद यही तौबा का वक्त हो। जज़ाकल्लाह।